The determinant is a single number or scalar. The determinant is a single number or scalar and is found only for square matrices. डिटर्मिनेंट या सारणिक एक सिंगल नंबर होता है या स्केलर होता है जो कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पाया जाता है। यदि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो हम डिटर्मिनेंट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। If the determinant of a matrix is equal to 0, the matrix is termed singular. यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सिंगुलर matrix is one in which there exists linear dependence between at least two rows or columns. It means determinant will be equal to 0. When determinant is equal to 0, the matrix is termed as singular matrix and there exists linear dependence between at least two rows or columns. किन्हीं दो रो या कॉलम के बीच में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। मैट्रिक्स a matrix is a non-singular. A non-singular
S-I-N-G-U-L-A-R. A non-singular matrix is one in which there is no linear dependence in rows and columns. A singular matrix is one in which there exists linear dependence between at least two rows or columns. जब हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, और ऐसे केस में कोई दो रो या कोई दो कॉलम परस्पर निर्भर पाए जाते हैं. लेकिन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब होती है व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. When determinant is not equal to 0, the matrix is called non-singular matrix. And all the rows and columns are linearly independent in this case. जितने भी रो या कॉलम होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, परस्पर निर्भर नहीं होते हैं. The determinant of a 2 into 2 order matrix is called second order determinant. Second order determinant. कैसे निकाल सकते हैं इसको? Suppose A is a given matrix. Elements are A11, A12, A21, A22. Its order is 2 into 2. So determinant is represented in bars, और या हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, इसके लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है. सो A11 इंटू इसका मल्टीप्लीकेशन होता है इसके साथ और इसका मल्टीप्लीकेशन होता है इसके साथ. A11 इंटू A22, बीच में माइनस साइन होता है. A12 इंटू A21. ये आपका हो गया A11 इंटू A22 माइनस A12 into A21. This multiplied by this A11 into A22, A12 माइनस साइन बीच में रहेगा, फिर A12 into A21. तो ये आपका कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. व्हेन मैट्रिक्स इज ऑफ 2 into 2 order, it is called
सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। हम एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं इसको। Suppose this is a given matrix. Elements are 2, 3, 4, 5. So this will be multiplied by this and this will be multiplied by this. So determinant will be 2 into 5 minus 3 into 4. 10, 5 2 ja 10 minus 4 3 ja 12. Determinant will be equal to minus 2. When determinant is equal to not equal to 0, यहाँ पे determinant की जो value मिल रही है that is not equal to 0. So it is called non-singular matrix. And all the rows and columns are linearly independent in this case. Now we will take third order determinant. Third order determinant. When matrix is of 3 into 3 order. A is a given matrix. Elements are A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. So A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. There are 3 rows and 3 columns. So it is of 3 into 3 order matrix. When we find its determinant, that is called third order determinant. How we can find its determinant? First we can take any row and any column from this determinant. कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेकर के हम डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं, चाहे तुम लास्ट रो को लेके फाइंड करें या लास्ट कॉलम को लेके फाइंड करें, किसी को भी लेते हैं, लेकिन हमारी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होगी वो सेम होगी. तो आई एम गोइंग टू टेक हियर दिस फर्स्ट रो. व्हेन वी टेक फर्स्ट रो, इसको यदि हम लेते हैं A11 को, दिस एलिमेंट belongs to first row and first column. तो हम क्या करेंगे, हम मेंटली मान लेते हैं कि दिस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट रो जो आपकी हो गई है ये दिस वन, और ये फर्स्ट कॉलम जिससे ये बिलोंग कर, जिससे ये एलिमेंट बिलोंग करता है, ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. इसको मेंटली मान लेंगे कि ये कॉलम जो है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. उसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे उसको हम लोग नोट करते हैं यहाँ पे. तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहले A11 को लिख लेंगे क्योंकि इसी का ही हमें निकालना है. जो निकालना उसको माइनर बोलते हैं, आगे मैं आपको बताती हूँ वो भी क्या होता है. तो हमने मान लिया कि A11 का जिस रो से जिस कॉलम से बिलोंग कर रहा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचेगा, A22, A23, A32, A33. तो दिस A22, A23, A32, A33. अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे A12 को बाहर लिख लेंगे. A12 को हमने बाहर लिख लिया. अब A12 को हमने बाहर लिख लिया, इसका मतलब है कि इसके साथ ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये इसके साथ जो भी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई होगा. तो A12 किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो
क्योंकि ये यहाँ पे फर्स्ट रो में ही चल रहा है, लेकिन कॉलम यहाँ पे बदल गया, कॉलम इसका हो गया है सेकेंड कॉलम। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम फ्रॉम विच दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स। ये बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो से और सेकेंड कॉलम से। फर्स्ट रो तो हमने पहले ही उसको कर लिया था, लाइन खींच लिया था, उसको अंडरलाइन कर लिया था, और ये सेकेंड रो। तो अब हमारे एलिमेंट कौन से बचेंगे, दिस एंड A33। तो A21, A23, A31, A33, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा था फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को हमने मेंटली मान लिया कि जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यदि हम मान लेते हैं कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये हमारा हट गया, यदि ये ऐसे कट जाएगा ये, और ये ऐसे कट गया, तो बचा क्या रह गया, तो बचा रह गया A21, A23, A31, A33, जो कि हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब मैं इसको अंडू कर दे रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे A13 को लेंगे, A13, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई, इससे जो भी आएगा वैल्यू आएगी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। A13 बिलोंग कर रहा है आपका फर्स्ट रो से और थर्ड कॉलम से। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को हम डिलीट मानेंगे कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये हमारा कट गया। बचा क्या रह गया है, A21, A21, A22, A31, A32। जिस रो और जिस कॉलम से वो पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग करता है उसको हम लोग मेंटली मान लेते हैं कि वो डिलीट है या वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको मेंटली हम डिलीट करके फिर बचे हुए एलिमेंट को नोट कर लेते हैं। तो ये आपका A13 जो था फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से बिलोंग कर रहा था, जिसके एलिमेंट को हमने हटा दिया, तो बचा हमारा रह गया है यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट जो है, दीज आर A21, A22, A31, A32। नाउ अब हमें ये देखना है कि इनके पहले साइन क्या लगेगा। तो साइन डिपेंड करता है कि हमारा जो ये है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तो हमें ऑड मिलता है कि हमें इवन मिलता है। तो 1 + 1 क्या होता है हमारा, 1 + 1 = 2, 2 विच इज इवन नंबर, तो इसके पहले साइन जो लगता है वो प्लस लगता है। 1 + 3, 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा। 3 मतलब हो गया ऑड नंबर, ऑड नंबर जब होगा तो यहाँ पे साइन हमेशा माइनस लगता है, इवन के पहले प्लस साइन और ऑड के पहले माइनस साइन। यहाँ पे क्या लगेगा, 1 + 3, ये भी हमें 4 मिलेगा विच इज इवन नंबर, तो हमारा साइन यहाँ पे लग जाएगा प्लस साइन। व्हेन जो एलिमेंट है वो I + j को हम जोड़ते हैं, व्हेन I + j = even प्लस साइन, I + j = ऑड नंबर यदि मिलता है तो माइनस साइन, नेगेटिव साइन। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे प्लस साइन लगाया, यहाँ पे माइनस साइन लगाया, यहाँ पे हमने प्लस साइन लगाया है। ऑड के पहले माइनस और इवन के पहले प्लस साइन। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। A11 ब्रैकेट में A22 इंटू A23, सॉरी A33 है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होना है, A33, और ये हो गया आपका A23 इंटू A32, फिर ये माइनस A12, फिर ये इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31।
अब यहाँ स्पेस नहीं है लेकिन यहाँ पे प्लस ही लगेगा, तो इसके नीचे मैं लिख ले रही हूँ, मतलब इसी के साथ कंटिन्यूएशन में ये जाएगा प्लस A13। इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। We will take 3 into 3 order matrix, 8, 3, 2, 6, 4, 7, 5, 1, 3. Elements are 8, 3, 2, 6, 4, 7, 5, 1, 3. 3 into 3 order matrix. Determinant we have to find out. So first we will take this element. You will write it here. इसके पहले साइन लगेगा प्लस, क्योंकि इसकी पोजीशनिंग हमने पता कर ली है, पीछे हमने देखा था A11 है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, ये हमारा एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से। तो हम क्या करेंगे, हम ये और ये हटा देंगे, क्या बचेगा आपका 4713। 4713 को यहां नोट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अंडू कर दूं। 4713। अब हमें लिखना है, इस एलिमेंट का निकालना है, दिस एलिमेंट। सो यहाँ पे साइन क्या लगेगा, हमें पता है कि इसकी पोजीशनिंग 1 एंड 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ साइन माइनस लगेगा। अब ये बिलोंग कर रहा है आपका फर्स्ट रो से और सेकंड कॉलम से, तो हम अब एलिमेंट क्या बचे रह गए, जब हमने मेंटली डिलीट कर दिया है, ये एलिमेंट डिलीट कर दी जिससे ये पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग कर रहा था, ये बिलोंग कर रहा था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे बच गए हैं 6, 7, 5, 3। लेकिन इसको भी हम अनडू पहले कर लेते हैं। 6, 7, 5, 3। अब यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे, हमें भी इसकी पोजीशनिंग पता है कि ये आपका है 1, 3, आई प्लस जे यहाँ पे है 4 विच इज इवन नंबर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस। ये बिलोंग कर रहा है आपका रो, तो इसके भी फर्स्ट है, कॉलम इसका आपका थर्ड हो गया है, तो एलिमेंट बचे क्या रहेगा 6, 4, 5, 1। इसको भी मैं पहले अनडू कर दूं, नहीं तो 6, 4, 5 and 1. Determinant एट, 4 3 जा कितना होता है, आप मैं डायरेक्ट यहां कर दे रही हूँ, 4 3 जा हो जाएगा आपका 12 और 7 1 जा 7। पता है हमें इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना है और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना है, तो 4 3 जा 12, 7 1 जा 7, -3, 6 3 जा 18 एंड 7 5 जा माइनस साइन बीच में 35, फिर +2, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 4 5 जा 20, -20।
8 इंटू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 12 माइनस 7 5 होता है, -3 इंटू -17 +2 इंटू -14 -20 +6 it is -14. This will be 51 because here it is minus sign, here again minus sign, minus minus, minus into minus plus. 51 plus not, here it will be minus. -28. -91 minus 28. This will be, determinant will be equal to 63. When determinant is not equal to 0, the matrix is called non-singular matrix. तो डिटर्मिनेंट निकालना आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का भी और थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का भी समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग जिस मेथड से ये निकाला है हमने डिटर्मिनेंट, उसको लैपलास एक्सपेंशन भी बोलते हैं। लैपलास एक्सपेंशन 3 into 3 और उससे हाई ऑर्डर की जब हमारी मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए वी फॉलो द Laplace expansion when matrix is of 3 into 3 or high order. Now properties of determinant. So this example has been solved. Some student told me that it was not visible to you all. So I am showing you it again. You can see that this is a 3 into 3 order matrix of which we have find out its determinant. So first we have taken the first row. हमने क्या किया, हमने फर्स्ट रो को लिया है, उसके आधार पे हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट किया है। आपका ये दिख रहा है, पहले हमने लिया था 8 लिया था। इसमें ये करते हैं कि जिस एलिमेंट को लेते हैं हम मान लेते हैं कि वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट मेंटली हम मान लेते हैं कि वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो डिलीट हो गए हैं। तो 8 आपका बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है, तो हमने मान लिया है कि फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमने माना कि ये आपका जो है फर्स्ट रो 832 और फर्स्ट कॉलम 865 ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। रिमेनिंग हमने एलिमेंट को यहाँ पे लिख लिया 4713। इसके बाद हमने लिया था 3 को लिया था, यहाँ पे हमने लिख दिया 3 को, और मैंने पहले भी बताया था कि साइन हम जो लगाते हैं वो i प्लस जे के बेसिस पे लगाते हैं। रो प्लस रो जे मतलब कॉलम, i प्लस जे पे यदि हमें इवन नंबर मिलता है तो हम आप साइन पॉजिटिव लगाते, जैसा कि यहाँ पे भी लगाया गया, यहाँ पे भी लगाया गया है। लेकिन i प्लस जे यदि हमें ऑड नंबर मिलता है तो हम साइन माइनस लगाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लगाया है। तो -3 यहाँ पे लिख लिया। 3 आपका बिलोंग करता है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम हमने मान लिया मेंटली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 6 7 5 7। thereafter we have taken this 2, it belongs to first row third column. So again we will suppose that this first row and third column is not existing and remaining element will be 6 4 5 1. We have written here 6 4 5. So here it will be plus sign because I plus j is even number. So here sign will be plus, 8 is here and we have multiplied it cross
cross multiplication has been done, and in between we have put minus sign. 4 3s are 12, 7 1s are 7, 12 minus 7, 3 6s are 18, minus 7 5s are 35. 6 1s are 6, here we have written 6, 4 5s are 20. In between there is minus sign. So we have solved this. You can see here we have solved here and got its determinant equal to 63. It is a non-singular matrix of order 3 because determinant is not equal to 0. Afterwards, I have started properties of determinant. First property states that interchanging any two rows or columns of a matrix will change the sign but not the absolute value of the determinant. यदि हम किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट का मान होता है, जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता है. इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं. This is 1 4 2 3 5 and 4 2 3 and 2. It is of 3 into 3 order matrix. हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि जब हम किन्हीं दो रोज या किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो केवल साइन चेंज होता है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता. तो पहले हमें क्या करना होगा? हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा. वी विल फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट. मैंने पहले जैसे बताया था उसी मेथड पे सॉल्व करेंगे. अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी. +1 5 4 3 2 -4 3 4 2 2. Thereafter we will take 2, so its sign will be plus 3 5 2 3. So we will solve it. One 5 2 ja 10 -4 3 ja 12 -4 3 2 ja 6 4 2 ja 8 +2 3 3 ja 9 5 2 ja 10. 9 minus 10. One into -2 -4 into -2 +2 into -1 -2 plus
4 2 जा 8 minus 2 1 जा 2. So this will be minus 4 plus 8 is equal to 4. So determinant is equal to 4. Now we will say when we change the rows, interchange rows, whether their value will be changing or not. Now suppose we are changing here first. This is our R1. This is R2. So what we will do? We will make R1 as R2 and R2 as R1. हम क्या करेंगे? रो 1 की जगह रो 2 को लिख के देखेंगे और रो 2 की जगह रो 1 को लिख के देखेंगे. हमारी रो 1 थी 1 4 2, रो 2 3 हमारी 3 5 4 थी. तो पहले हम क्या करेंगे? 3 5 4 को ले लेंगे, फिर हम लेंगे 1 4 2 को, और जो थर्ड रो है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं. अब ये देखेंगे इसका मान क्या मिलता है. When we have interchanged rows, what value we get? So 3 4 2 3 2 minus 5 1 2 2 2 plus 4 1 1 4 2 3. So we took this first, then